हेलो स्टूडेंट्स बेटा अपनी यूनिट 7 चल रही है पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗਰੁੱਪ 15 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ 15 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਂਟੀਮਨੀ ਐਂਡ ਬਿਸਮਥ ਓਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ बेटा फिर ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈਡਰਾइड्स then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਾਈड्स ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ बेटा then next ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਕਿਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਐਂਡ ਆਕਸੋ ਐਸਿਡਸ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ बेटा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਐਂਡ ਆਕਸੋ ਐਸਿਡਸ oxides and oxo acids of phosphorus oxides and oxo acids of phosphorus देखो बेटा समझो पहला ध्यान ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ देखो ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈਡਰਾइड्स ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਹੈਲਾਈड्स ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਤੇ ਆਕਸੋ ਐਸਿਡਸ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਤੇ ਆਕਸੋ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਤੇ ਆਕਸੋ ਐਸਿਡਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਤੇ ਆਕਸੋ ਐਸਿਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣਾ ਆਕਸਾਈਡਸ ਐਂਡ ਆਕਸੋ ਐਸਿਡਸ ਆਫ ਫਾਸਫੋਰਸ ਕਲੀਅਰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਕਸਾਈਡਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਫਾਸਫੋਰਸ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਫਾਸਫੋਰਸ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਕਾਮਨ ਆਕਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੂ ਕਾਮਨ ਆਕਸਾਈਡਸ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ phosphorus trioxide and second one is the phosphorus pentaoxide ठीक है जी ये दो ही ने मेन ऑक्साइड फास्फोरस से ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ P4O6 ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਫਾਸਫੋਰਸ P4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ P4 ਦੇ ਨਾਲ 6 ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਕਸਾਈਡ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ P4O6 ਆ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਫਾਸਫੋਰਸ 3 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਕਸਾਈਡ ਕਹਿ ਲਓ ਕਲੀਅਰ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪੈਂਟਾਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ P4O10 ਪੈਂਟਾ ਮਤਲਬ 5 ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ P2 ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ P4 ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ 10 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੈਂਟਾਆਕਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਫਾਸਫੋਰਸ 5 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਅਗਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੈਂਟਾਆਕਸਾਈਡ ਅਗਰ 3 ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ P4O6 ਤੇ P4O10 these are the oxides of phosphorus okay ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ of oxides of phosphorus what is the structure of oxides of phosphorus ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 36 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 37 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਫਾਸਫੋਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ draw the structure of phosphorus trioxide okay ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ or draw the structure of phosphorus
ਫਾਸਫੋਰਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਓਕੇ क्वेश्चन किवें भी आ सकदा और ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਡਰਾ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ P4O6 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਸਫੋਰਸ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓ ਜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ 3 ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ P4O6 ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਸਟ phosphorus then oxygen again phosphorus again oxygen ठीक है alternate लगाने बेटा phosphorus oxygen again इस साइड उते oxygen phosphorus again oxygen then उस तो बाद लास्ट उते की आ जानी बेटा phosphorus ठीक है alternate लगाना phosphorus oxygen alternate देखो कितनी phosphorus ने 4 तो 1 2 3 4 oxygen ता 4 phosphorus ता लग गया ठीक है ऑक्सीजन कितनी ने बेटा 6 तो ऑक्सीजन कितनी ने 1 2 3 4 सिर्फ अपने को स्ट्रक्चर दे विच 4 ऑक्सीजन ने दैट मींस अपन नु 2 ऑक्सीजन होर लगानी पैणगियां ते अपन नु पता कि ऑक्सीजन दा ऑक्सीजन नाल बॉन्ड नहीं हैगा ऑक्सीजन ते फास्फोरस दा अल्टरनेट बॉन्ड आ ठीक है तो हुण जेहड़ियां आ दो फास्फोरस ने इन्हां दे विचाले की लग जाने बेटा ऑक्सीजन अल्टरनेट फॉर्म च लगाणियां ने अपन ने ठीक है ते आ वाली जेहड़ी दो फास्फोरस ने बेटा इन्हां दे नाल भी ऑक्सीजन दा बॉन्ड बन जाना ठीक है जी तो ये देखो अपने को 4 ऑक्सीजन हो गया P4 हो गया ते सॉरी 4 फास्फोरस हो गया P4 हो गया ते 6 ऑक्सीजन हो गया 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गया ठीक है तो आप की कहांगे P4O6 ठीक है या फिर इन्हू फास्फोरस ऑक्साइड भी कह सकते हैं फास्फोरस ट्राईऑक्साइड भी कह सकते हैं ओके तो इसी पुत्र अपने को स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस ट्राईऑक्साइड दी क्लियर तो 37 का ए क्वेश्चन हो गया है अपने को नैक्सट आप 37 का बी क्वेश्चन करते हैं 37 का बी क्वेश्चन की बनूंगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 37 का बी क्वेश्चन देखो बेटा ड्रॉ द स्ट्रक्चर of phosphorus pentaoxide ए हो सकता पुत्र ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ phosphorus pentaoxide और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ phosphorus ब्रैकेट दे विच की पा दें 5 क्लियर या फिर की आ जाए बेटा और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10 ठीक है ये अपन स्ट्रक्चर्स मिल सकती हैं P4O10 दी कह सकते हैं तो या फिर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या फिर फास्फोरस 5 ऑक्साइड ठीक है जी तो इदा ही सेम स्ट्रक्चर है पुत्र जिसदा आप P4O6 दी बनाइए तो उदा ही सेम P4O10 दी आनी है इत्थे स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल फास्फोरस ऑक्सीजन अगेन फास्फोरस ऑक्सीजन ठीक है अल्टरनेट लगाने ने बेटा इत्थे आपां ने ऑक्सीजन फास्फोरस देन उस बाद ऑक्सीजन देन एट लास्ट फास्फोरस ठीक है तो एक चीज से क्लियर है कि 4 फास्फोरस हो गई ऑक्सीजन कितनी चाहिए ने 10 अपने को कितनी ऑक्सीजन लगी है इत्थे स्ट्रक्चर दे विच 4 क्लियर देन उस बाद जे आपां ने 2 ऑक्सीजन होर लगाउणियां ने देन इधर ए वाली दोनों फास्फोरस ऑक्सीजन दे नाल लिंक बन जाना देन अगेन ए वाली दोवें फास्फोरस दा ऑक्सीजन नाल लिंक बन जाना ते ए तां हो गई स्ट्रक्चर P4O6 दी क्लियर तो हुण अपने कोल O10 आ 10 मतलब 4 ऑक्सीजन होर चाहिए ने तो हुण देखो बेटा फास्फोरस की जो वैलेंसी हुंदी है दैट इज द 5 किन्ने बॉन्ड बना सकती है 5 बॉन्ड 3s2 3p3 ठीक है तो हर एक फास्फोरस ने इत्थे किन्ने बॉन्ड बनाए हुए ने 3 बॉन्ड बनाए हुए तो इट मींस ये 2 बॉन्ड होर बना सकती है तो हर एक फास्फोरस ऑक्सीजन दे नाल डबल बॉन्ड बनाऊगी ठीक है जी तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगेन फास्फोरस दे नाल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फास्फोरस अगेन हियर इज सेम ठीक है जी तो इस तरह करके अपने को 4 फास्फोरस दे नाल डबल बॉन्ड बन जाना ऑक्सीजन दा ईवन ए केस दे विच अपने को फास्फोरस की सारी वैलेंसी भी कंप्लीट हो रही है हर एक फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रही है तो ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकती है बेटा हर एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रही है अपने को ठीक है तो अपने को P4O10 की स्ट्रक्चर बन के आएगी क्लीयर है जी ठीक है तो ये सी अपने को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की स्ट्रक्चर ठीक है तो अपने को ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस कंप्लीट हो गए हुण आपां नैक्सट टॉपिक स्टार्ट करन लगे हां फास्फोरस दा ही दैट इज द
ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। क्लियर है बेटा, केड़ा होगा नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, तो हुण पहला समझो अपने पिछले लैक्चर च मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि ऑक्सो एसिड्स कहंदे किहनूं ने। ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन होनी है, एसिड मीनस H होगा ते फॉस्फोरस दे कंपाउंड ने तो इट मीनस PV होगा। तो इन्हां तिन्नां नूं मिला के जिहड़े अपने कोले एसिड्स बन के आंदे ने उन्हां नूं की कहा जांदा ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। मीनस तीन एलीमेंट होणगे ऑक्सो एसिड्स दे विच। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स बनते हैं बेटा। ठीक है, बेसिकली आपां पहलां इन्हां दे वन बाय वन ऑक्सो एसिड्स दी आपां स्ट्रक्चर देख लीए किद्दां हुंदी आ, फॉर्मूला देख लीए ते इन्हां दे केमिकल नेम देख लीए बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ऑक्सो एसिड हैगा H3PO2, H3PO2 which is also known as the hypophosphorus acid, hypophosphorus acid or also known as phosphenic acid और also known as phosphenic acid। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इन्हां सारियां दा नाम याद होना चाहिए क्योंकि बेसिकली जब तो कहा जाता ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेनिक एसिड। ठीक है, तो तुहानूं पता होना चाहिए फॉस्फेनिक एसिड का फॉर्मूला H3PO2 हुंदा, H3PO2 नूं हाइपोफॉस्फोरस कहंदे ने, मींस ये तिन्ने लिंक्ड ने। ठीक है जी, दैन उस बाद सैकेंड किहड़ा आ रहेगा बेटा अपने कोल H3PO3, H3PO3। क्लियर, तो इसका नाम की है बेटा अपने को ऑर्थोफॉस्फोरस। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरस या फिर इन्हें की कहा जाता बेटा फॉस्फेनिक एसिड, फोस्फोनिक फिनिक दा सी ना, तो इन्हें कहा जाता फॉस्फोनिक एसिड। क्लियर, दैन उस बाद थर्ड अपने को की आ रहा, थर्ड H3PO4। बहुत इजी नहीं याद रखने, H3PO2, H3PO3, H3PO4। ठीक है, तो इसका नाम किया गया बेटा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, देखो ये हाइपोफॉस्फोरस आ, हाइपो का मीनिंग मतलब तो लिंक करवा रही है मैं इत्थे, हाइपो का मीनिंग की हुंदा घट, लैस। ठीक है, तो हाइपो हाइपर, ठीक है, आप पहला भी कर चुके हैं वर्ड्स। हाइपो का मतलब हुंदा लैस, तो ये अपने को इत्थे की है लैस ऑक्सीडेशन स्टेट होनी है। ठीक है, जाए मान लो भी अपने को इत्थे ऑक्सीजन की नहीं घट ने, तां करके आप इत्थे वर्ड हाइपो लगावांगे। ठीक है, तो जिथे अपने को PO2 आना तो उत्थे हाइपो वर्ड लगना। ठीक है, नैक्सट की आ रहा बेटा ऑर्थोफॉस्फोरस। हुण दोवें च ऑर्थो लग रहा H3PO3 दे विच भी ते H3PO4 दे विच भी, बट इत्थे ऑर्थोफॉस्फोरस आ। ठीक है, इत्थे अपने कोले ऑर्थोफॉस्फोरिक आ। ठीक है, तो फॉस्फोरस मैं तुहानूं की दस्सिया सीगा कि OUS वर्ड हुंदा ते एक IC वर्ड हुंदा। OUS वर्ड कित्थे लगदा बेटा जिथे लैस ऑक्सीडेशन स्टेट होवे, ते IC वर्ड कित्थे लगदा जिथे मोर ऑक्सीडेशन स्टेट होवे। कल ही आपां लैक्चर दे विच डिस्कस कीता सीगा जिथे मैं तुहानूं नाइट्रस ते नाइट्रिक बारे दस्सिया सी। ठीक है, तो उदा ही सेम ऑर्थोफॉस्फोरस ते ऑर्थोफॉस्फोरिक इत्थे OUS दा मीनस इत्थे घट ऑक्सीडेशन स्टेट हैगी H3PO3 दे विच, ते H3PO4 दे विच ऑक्सीडेशन स्टेट की वधदा। ठीक है, तो ऑर्थोफॉस्फोरस ते ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड याद रखो बेटा इन्हां दे केमिकल नेम। क्लियर, उस तो बाद नैक्सट अपने कोले फोर्थ किहड़ा आ रहा H4P2O7, दैट इज नोन एज द pyrophosphoric acid। ठीक है जी, तो ये सारे अपने को ऑक्सो एसिड ने फॉस्फोरस दे। हुण वन बाय वन आपां इन्हां दी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। क्लीयर है जी, तो एग्जाम दे विच क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इन्हां दे 1 मार्क के डायरैक्ट क्वेश्चन आउंदे ने। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस दे उत्ते तुहानूं ऑक्साइड्स दीयां सारियां दीयां स्ट्रक्चर्स ने बेटा। पहले कल आपां नाइट्रोजन दे ऑक्साइड दी स्ट्रक्चर कीती सी, ते अज आपां किहदियां स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस दीयां। ठीक है, तो हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन स्टार्ट करन लगे अपना ऑक्सो ऑक्साइड्स वाला क्वेश्चन सीगा। नैक्सट क्वेश्चन 38 ऑक्सो एसिड्स वाला। ठीक है, तो हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन 39 करन लगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 39। लास्ट वाले क्वेश्चन नूं जिहड़ा ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस सीगा इहनूं क्वेश्चन बना लियो बेटा, क्वेश्चन नंबर 38।
ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 38 आ तो हुण आपां किहड़ा क्वेश्चन करन लगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 दे विच देखो पुत्तर अपने को स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करन लगे आपां ड्रॉ द structure of oxo acids of phosphorus and its basicity आ चीज नवी है बेसिसिटी ये भी पूछी जाती है एग्जाम दे विच ठीक है। मैं जो स्ट्रक्चर करवाऊंगी उहदे नाल नाल ही क्लीयर करूंगी बेटा तुहानू ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला अपने कोले की सीगा H3PO2 हाँ जी की नाम है इसका हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फिर फॉस्फेनिक एसिड क्लियर। तो देखो बेटा हुण इहदी स्ट्रक्चर किद्दां बनानी है बेसिकली तुहानू इहदे विच सेंट्रल एटम पता होना चाहिए किहड़ा फॉस्फोरस ठीक है। तो सेंट्रल एटम अपने कोल किहड़ा रजे फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के केस दे विच देखो सब तो पहले तो फॉस्फोरस की वैलेंसी पता होनी चाहिए कितनी होंदी है 5 ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉस्फोरस से ऑक्सीजन का पहले डबल बॉन्ड बना देना ठीक है। तो फॉस्फोरस से ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन गया हुण अपने कोल 3 हाइड्रोजन ते 1 ऑक्सीजन रहेगी ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन रह गए फर्स्ट हाइड्रोजन सेकंड हाइड्रोजन ते नेक्स्ट हाइड्रोजन ठीक है। तो 1 ऑक्सीजन रहेगी वो 1 ऑक्सीजन OH की फॉर्म दे विच इहदे नाल अटैच हो जानी है ठीक है। तो इत्थे अपने कोल जिहड़ी स्ट्रक्चर बन के आउणी है दैट इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो देखो फॉस्फोरस की इत्थे अपने कोल वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई ठीक है 5 बॉन्ड बन के आ रहे ने क्लियर। ते H3PO2 सारे इत्थे एलिमेंट्स कंप्लीट ने। नेक्स्ट गल करदे आपां इसदी बेसिसिटी दी ठीक है जी। बेसिसिटी हुण बेसिसिटी हुंदी की है याद करो मैं तुहानू दस्सिया सीगा कि बेसिसिटी एसिड्स लई हुंदी आ। एसिड्स मतलब जेडे H पॉजिटिव रिलीज कर दिंदे ने कोई एसिड जिन्ने H पॉजिटिव रिलीज करदा उन्नी ही उसकी बेसिसिटी हुंदी आ। तो इत्थे मेरे कोल H3PO2 आ H3PO2 आ। तो कई स्टूडेंट्स नू लगना इत्थे देखण ते कि इत्थे 3 H रिलीज हो सकदे ने तो इट मींस इहदी बेसिसिटी कितनी होनी है 3 होनी है। बट एक्चुअली इदां नहीं हुंदा बेटा ठीक है। स्ट्रक्चर दे विच देखो ध्यान नाल जिथे अपने कोले किहड़ा बॉन्ड ईजी ब्रेक हो सकदा ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन दा बॉन्ड ठीक है क्योंकि आयनिक बॉन्ड हुंदा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ तां ये बॉन्ड बहुत ईजी ब्रेक हो जांदा। तां इह केस दे विच अपने कोल सिर्फ एक ही H रिलीज होगा बाकी दे जिहड़े 2 H ने नहीं रिलीज होने क्योंकि डायरैक्ट फॉस्फोरस दे नाल अटैच ने ठीक है। फॉस्फोरस दे नाल डायरैक्ट अटैच होने करके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुंदा बेटा। बट ए वाला बॉन्ड आयनिक हुंदा तां इत्थे जल्दी एक H पॉजिटिव रिलीज होना ठीक है। मींस इत्थे अपने कोले H2PO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव ठीक है। अगर एक H पॉजिटिव रिलीज होए तो इसकी बेसिसिटी कितनी होनी है बेसिसिटी मींस इसकी कितनी होनी है बेटा कितने H पॉजिटिव रिलीज कितने ने 1 तो इसकी बेसिसिटी 1 होनी है। इवन ये भी पूछा जाता भी ये मोनोप्रोटिका डाईप्रोटिका ट्राईप्रोटिका ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ कि प्रोटिक ਦਾ मींस ये भी कितने H पॉजिटिव रिलीज कर सकता ठीक है। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ बेटा कि ਇਹ मोनोप्रोटिका ਜਾਂ डाईप्रोटिका ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ H पॉजिटिव रिलीज करदा दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ मोनोप्रोटिक ठीक है जी। नेक्स्ट की आ रहा है बेटा सेकंड स्ट्रक्चर आप बनाने H3PO3 दी H3PO3 दी क्लियर। तो H3PO3 के केस दे विच देखो फॉस्फोरस दा सेम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नाल तां बनाना ही बनाना तुसीं ने। हुण अपने कोले 3 ऑक्सीजन सीगियां जिहदे विच एक अटैच होगी तो 2 ऑक्सीजन रह गई ते 3 हाइड्रोजन ठीक है। तो देखो बेटा इत्थे अपने कोल 1 हाइड्रोजन दैन उस बाद सेकंड हाइड्रोजन दैन उस बाद नेक्स्ट हाइड्रोजन हुण अपने कोल कितनी ऑक्सीजन पेंडिंग ने 1 अटैच होगी 2 रह गई तो इत्थे आपां की करांगे 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन्हां दे नाल लगा देंगे किसी भी हाइड्रोजन दे नाल लगा दो बेटा ठीक है। तो 2 OH हो जाएंगे तो 1 H हो जाना क्लियर। तो हुण तुसीं दस सकदे हो भी इहदी बेसिसिटी कितनी आ हमेशा H किहड़ा रिलीज हुंदा जिहड़ा ऑक्सीजन दे नाल अटैच हुंदा तां इसदी बेसिसिटी कितनी है इत्थे अपने कोल बेसिसिटी इज 2 एंड कितना प्रोटॉन कितने रिलीज कर सकता 2 तो फिर तुसीं इहनूं की कहोगे डाईप्रोटिक की कहोगे बेटा इसनूं डाईप्रोटिक क्लियर H3PO3 के केस दे विच। नैक्सट आपां कर देंगे थर्ड बेटा ठीक है। हुण थर्ड स्ट्रक्चर दे विच देखो अपने कोल की है फॉर्मूला H3PO4 याद है आपां इहनूं किहड़ा नाम दिता सीगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड दी स्ट्रक्चर बनाओ P डबल बॉन्ड हो सब दे विच आपां इदां ही कर रहे हैं कि 5 वैलेंसी कंप्लीट करनी है फॉस्फोरस की। दैन उस तो बाद अपने कोले कितने हाइड्रोजन ने बेटा 3 हाइड्रोजन ते 3 ही ऑक्सीजन तो आपां इत्थे ऑक्सीजन दे नाल
H ग्रुप लगा देंगे, ठीक है। तो हुण देखो अगेन सेम वैलेंसी कंप्लीट हो गई जी। तो किन्ने H पॉजिटिव रिलीज कर सकता, किन्ने ऑक्सीजन दे नाल H लग रहे ने 3, तो इहनूं आपां की कहांगे राजे, इसकी बेसिसिटी किन्नी हैगी 3, बेसिसिटी किन्नी है पुत्तर 3, एंड एक ही है ट्राईप्रोटिक, एंड इट इज अ ट्राईप्रोटिक। क्लीयर। उस बाद नैक्सट आप फोर्थ करते हैं। फोर्थ अपने को की सीगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7, ठीक है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। अपने को फास्फोरस 2 नहीं गए बेटा, P2 आ, हर एक फास्फोरस का पहला तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ना बना लो, ठीक है। देन उस तो बाद नैक्सट अपने को 5 ऑक्सीजन बचियां, 2 तो अटैच हो गई, ठीक है। तो 4 अपने को की बचे बेटा हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो पहला तो हर एक हाइड्रोजन के नाल ऑक्सीजन लग जानी है, अगेन इधर भी हाइड्रोजन के नाल ऑक्सीजन, अगेन इधर भी हाइड्रोजन नाल ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन रहेगी अपने को, देखो 1 2 3 इधर लग गया, 3 इधर लग गया, 6 हो गया, एक ऑक्सीजन रहेगी। तो एक ऑक्सीजन बेटा अपने को इन्हां दोनों दे नाल ब्रिजिंग फॉर्म च लगनी है। क्लीयर। तो देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड फास्फोरस दे कंप्लीट ने, हर एक एलीमेंट दी इथे वैलेंसी कंप्लीट है बेटा। तो किन्ने H पॉजिटिव रिलीज कर सकदा 4, तो इसकी बेसिसिटी किन्नी होनी है अपने को, बेसिसिटी इज द 4, एंड आपां नूं की कह सकते हैं टेट्राप्रोटिक, टेट्राप्रोटिक। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है बेटा। तो ये सीगे अपने को ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। तो हुण तक देखो रोजी तुसी ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस दे भी पढ़ चुके हो, ते ऑक्साइड्स तुसी नाइट्रोजन दे भी पढ़ चुके हो, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं आपां। क्वेश्चन दे विच समझो पहला तो क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है बेटा ग्रुप 15 एलीमेंट्स दा। ग्रुप 15 एलीमेंट्स कंप्लीट हो गए तुहाडे इत्थे 40 क्वेश्चंस दे नाल। क्लियर। तो देखो तुसी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ के आए हो। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दे विच जिथे तुसी NO, ठीक है, NO2, N2O3 ते N2O4, क्लियर, ऐदां दे ऑक्साइड्स पढ़े हुए ने, ठीक है। ते ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस भी पढ़े ने बेटा, जिवें P4O6 ते P4O10, ठीक है। इन्हां दोवां दी स्ट्रक्चर दे विच देखो नाइट्रिक ऑक्साइड्स अपने को N2O3 ਜਾਂ N2O4 ਦੀ स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ डिफरेंस ਹੁੰਦਾ बेटा, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ N2O4 ਦੀ स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है। ध्यान ਨਾਲ समझो, पहले मैं क्वेश्चन ही किद्दां लिखूंगी ਉਹਨੂੰ देखो, ठीक है। तो P4O6 ਦੀ स्ट्रक्चर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ बेटा, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ साइक्लिक स्ट्रक्चर आ, ठीक है जी। तो देखो राजे ਹੁਣ कि अपने को ऑक्साइड्स किस ਦੇ ਨੇਗੇ फास्फोरस ਦੇ, ਤੇ ऑक्साइड किस ਦੇ ਨੇ नाइट्रोजन ਦੇ। पर ਜਿਹੜੇ नाइट्रोजन ਦੇ ऑक्साइड्स ने, ठीक है, इन्हां दी तो ओपन स्ट्रक्चर आ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਟਰਕਚਰ ਆ। ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਓਪਨ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਾਈ ਦ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, oxides of nitrogen have open chain structure, have open chain structure while those of phosphorus, while those of phosphorus have closed chain structure, have closed chain structure why। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕੀ ਆ ਓਪਨ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਕੀ ਆ ਕਲੋਜ਼ਡ ਚੇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ कि अपने को नाइट्रोजन ते फास्फोरस सेम ही ग्रुप ਨੂੰ बिलोंग कर रहे हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ते अपने को ग्रुप 15 एलिमेंट्स ने, ठीक है जी। नाइट्रोजन की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की होंदी है बेटा 2s2 2p3, ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3s2 3p3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਧਰੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੂਇਸ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਬੌਂਡ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ नाइट्रोजन का साइज छोटा होने करके नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना सकती है, मतलब बिकॉज ऑफ
small size of nitrogen it forms a multiple bond। ठीक है जी, multiple bond बना सकती है even ਇਹ p pi bonding भी कह देने ਆਪਾਂ ਨੂੰ। it forms a p pi bonding because of its small size, because of its small size, ਸਾइਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੀ ਪਾਈ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਕੈਂਟ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਕਟੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਹੁਣ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪੀ ਪਾਈ ਡੀ ਪਾਈ ਬੌਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼, ਡਿਊ ਟੂ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਫਾਸਫੋਰਸ it doesn't form multiple bond, it doesn't form multiple बॉन्ड। तो फिर अपनी वैलेंसी किदा कंप्लीट करूगी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर च। मैं तुहानू याद करवा दा, एक आपां क्वेश्चन कीता सीगा कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड मतलब N2 दे विच एग्जिस्ट करदा। ठीक है, ते जिहड़ा फास्फोरस आ वो P4 दे विच एग्जिस्ट करदा। ਇੱਥੇ दोनों ये स्ट्रक्चर बारे पता लग जाना चाहिए सीगा बेटा। ठीक है, कि फास्फोरस दी किहड़ी स्ट्रक्चर हुंदी आ, क्लोज्ड स्ट्रक्चर, ते नाइट्रोजन दी किहड़ी स्ट्रक्चर हुंदी आ, ओपन स्ट्रक्चर। ਇੱਥੇ भी आपां ही रीजन दिता सी भी नाइट्रोजन दा साइज वड्डा होण करके डबल ਜਾਂ ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकदी। ठीक है, ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ 15 ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ 15 ਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲਏ ਤੇ 40 ਦੇ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਗਰੁੱਪ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ 16 ਗਰੁੱਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਠੀਕ ਆ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਗ੍ਰਿਪ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ।